হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্লগ বাই কোয়েল। সো আবার আমি চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। আজকে একটি ইন্টারেস্টিং জায়গায় যাব। ইন্টারেস্টিং বলতে অ্যাকচুয়ালি আমার খুব মনের কাছের একটি জায়গা, যেখানে আমি ভীষণ শান্তি ফিল করি। সমস্ত চিন্তা আমার দূর হয়ে যায়, যতই লাইফে স্ট্রেস থাকুক না কেন, চিন্তা থাকুক না কেন। তো চলো নিয়ে যাই তোমাদেরকে। আমি ঠিক কোন জায়গার কথা বলছি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি সেটা দেখতে পাবে। লেটস গো। Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? Together counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, start to top the yawns. It's all you need to do. বন্ধুরা, যে জায়গাটার কথা বলছিলাম ঠিক সেই জায়গায় এসে পৌঁছে গেছি। আপনারা দেখতে পারেন মালদার ইসকন মন্দির। মালদার ইসকন মন্দির যেটা রামকৃষ্ণপল্লীতে রয়েছে। আজ ঠিক এই মন্দিরেই আমরা ঢুকবো এবং মহাপ্রভুর দর্শন করাবো আপনাদের। চলুন। মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে, যার জন্য দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভোগ নিবেদন করার জন্য। তো যখনই দরজাটা খুলে দেওয়া হবে তখনই আপনাদেরকে আমরা মহাপ্রভুর দর্শন করিয়ে দেব। দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি রামকৃষ্ণপল্লীর ইসকন মন্দিরের অফিসে। তো প্রথমে এখানে এসেই আমার প্রথমেই আর কি নজর কাড়লো, সেটা হলো রাধাকৃষ্ণের এই খুব সুন্দর মিষ্টি মূর্তিটা। গেছি একজন প্রভুজিকে, তাকে আমি একটু জিজ্ঞেস করে নেব ওনার নাম এবং ডিটেলস এই মন্দিরের ব্যাপারে। प्रभु जी अपना नाम? हरे कृष्णा। मेरा नाम है सुधांशु घोष, क्योंकि अभी मेरा दीक्षा नहीं हुई है, इसी वजह से सुधांशु घोष मेरा नाम है।
और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, कन्हई नाटसाला, और साहिबगंज जिले कन्हई नाटसाला। প্রভুজি আপনি কবে থেকে আছেন এই ইসকন মন্দিরে? मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ 1 साल हो गया मुझे जुड़ने से, और इस मंदिर में मैं लगभग 1 महीने से हूँ, न्यू ही ज्वाइनिंग हुआ है। तो मैं ट्रेनिंग में था, मायापुर ट्रेनिंग में। আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রভুজি আপনার কেমন লাগে মহাপ্রভুর যে আপনি সেবা করছেন, মহাপ্রভুর চরণে রয়েছেন, মহাপ্রভুর সমস্ত কিছু দেখাশোনা সেবা, এটা মানে আপনার কাছে কেমন এই ফিলিংসটা? जैसे आप घर में सेवा कर सकते हैं, कोई भी आप सेवा, वो आप ट्रांसफॉर्म करके आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं महाप्रभु के लिए। आप कुछ भी करें, बस महाप्रभु के लिए करें, कृष्ण के लिए करें, ठीक है, यही बात। আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রচণ্ড আপনি এক কথায় এখানে মহাপ্রভুর সেবাতে ভীষণ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং আপনি সেইভাবে এই জায়গাতেই শান্তি পাচ্ছেন, যার জন্যই আপনার খুব কম বয়স থেকে, আপনার আশা করছি বয়সটাও তেমন নয়, আপনি কি একটু আপনার বয়সটা বলবেন? मेरा उम्र है लगभग 21 साल। আচ্ছা, 21 বছর বয়সী উনি। मैं इस्कॉन में जुड़ा लगभग 20 साल में इस्कॉन में जुड़ा, और 21 साल अभी हो रहा है। তো আমরা প্রভুজির কাছে জেনে নেব যে আমরাও কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত হব, এবং তাছাড়া যত নেগেটিভিটি রয়েছে লাইফে, সমস্ত নেগেটিভিটিকে পার করে কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত হব, সৎ পথে চলবো, সেটা আমরা প্রভুজির কাছে জেনে নেব। প্রভুজি আপনি কি আপনি কি মানে একটা মেসেজ দেবেন ইয়াং জেনারেশনকে, যে আমরা যেন সবাই কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারি এবং নেগেটিভ কাজগুলোকে যেন দূরে সরিয়ে পজিটিভের দিকে যেন আমরা এগিয়ে যাই? जैसे आप यंग जनरेशन को अभी आप देख रहे हैं कि सभी भौतिक लाइफ में जुड़े हुए हैं, मतलब कि भौतिकता में एकदम लिप्त है। वो 4 नियमों का पालन नहीं करते, जैसे हमारे इस्कॉन में बताया गया है 4 नियमों का पालन, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, मीट नहीं खाना, और नो गैम्बलिंग, ठीक है, असत्संग नहीं करना, माने कि नो इलिटरेट सेक्स, ठीक। तो उसको ये 4 नियम पालन करने में ही हमारा 4 धर्म जो है, 4 धर्म है। मीट खाने से आपका सत्य चला जाता है, दया चला जाता है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति दया नहीं दिखा सकते। उसके बाद जुआ खेलने से आपका सत्य चला जाता है, आपको झूठ बोलना पड़ता है। और असत्संग करने से आपकी सोच चली जाती है, शुद्धता, पवित्रता चली जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं यंग जनरेशन जो है ये 4 कार्यों में लिप्त है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर में जो कॉलेज स्कूल के जो यंग जनरेशन हैं वो अभी गलत दिशा में जा रहे हैं, वो पाप कर्मों में लिप्त हो चुके हैं और हो रहे हैं, और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसे हमें रोकना चाहिए, और इसको यही सिखाता है यंग जनरेशन को कि आप 4 नियमों का पालन करें, जैसे कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिटरेट सेक्स, ठीक है, क्योंकि धर्म का 4 पिलर है, वो इससे नष्ट हो जाता है, और कलयुग इसी में ही अवस्थान करता है। अगर ये 4 नियम अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी जो उन्नति है पारमार्थिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में वो नहीं होती है, ठीक है। और कम से कम ये पालन करें, माला ना करे किंतु ये पालन करे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो रजो और तमो गुण होता है वो उससे एक स्टेज ऊपर उठेगा, सतो गुण में कम से कम आएगा। প্রভুজি এইমাত্র 3 গুণ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, তো সেই 3 গুণটা কি, সেই বিস্তারিত আলোচনাটা জানতে আমি প্রভুজির কাছে আবার একটু জিজ্ঞেস করে নেব যে এই 3 গুণ সম্বন্ধে প্রভুজি কি বলতে চাইছেন। প্রভুজি আপনার মতামত। बेसिकली ये 3 गुण होती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो घोर आलस में रहते हैं, ठीक है। पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तमोगुण व्यक्ति वाले वो घोर आलस होते हैं, उसे काम करने का इच्छा नहीं होता, और उसका आहार होता है मीट मछली और शराब गांजा इत्यादि, ठीक है। और रजोगुण का प्रावधान ये है कि वह एकदम वे पैशनेट होते हैं, पैशन मतलब वो कुछ दिखाना चाहते हैं, मैं करके कुछ दिखाऊंगा, और वो भागते रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं, वो एकदम फास्ट,
वो 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे और दौड़ेंगे ऑफिस, और फिर आएंगे और फिर खाना खाएंगे, फिर मतलब उसका काम ही धंधा एकदम पैशनेट और दिखाना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब वो राजसिक मोड है। और सतोगुण वो सबसे बेस्ट गुण है। उसमें इंसान क्या करता है, उसमें सुबह 4 बजे उठता है, वो सतोगुण प्रावधान या तो एक्सरसाइज करेगा या योगा करेगा, ऐसा करता है, और वह हेल्दी रहता है, हेल्दी फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, तो बेस्ट है सतोगुण, और वे हेल्दी फूड खाता है, ना कि मांस मछली, और आलस नहीं है उसमें। প্রভুজির কথাগুলি শুনে আমি ভীষণ ইন্সপায়ার হয়েছি এবং ইনফ্লুয়েন্স হয়েছি, কিন্তু বিষয়টা হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা সবসময় মন্দিরে আসতে পারি না, প্রভুজিদের সঙ্গে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না যে আমরা দেখা করি, বা বাকিদের ক্ষেত্রেও সেটা সেম, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার জন্য বা পারিবারিক কিছু না কিছু কাজ রয়েছেই সবার। তো সেক্ষেত্রে আমি প্রভুজির কাছে একটা সাজেশন নিব যে আমরা যেন সবসময় সঠিক পথটা অনুসরণ করতে পারি এবং সৎ পথে চলতে পারি। সেটা কিভাবে আমরা সবসময় মন্দিরে না আসে বা প্রভুজির সঙ্গে দেখা না হয়েও কিভাবে সেই জিনিসটা আমরা মেনটেন করতে পারবো, প্রভুজি আপনার মতামত। सबसे पहले हम यूथ को ये बताना चाहेंगे कि वो घर में और सभी कामकाज करके भी वो भक्ति लाइन में जुड़े रहे और ये ज्ञान अर्जन करें। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये भगवत गीता है एज इट इज़, ठीक है। ये भगवत गीता है एज इट इज़, ये इस्कॉन का श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता है, और ये सबसे बेस्ट भगवत गीता है जो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है ये गीता, ठीक है। आप मायापुर का उदाहरण ले सकते हैं, मायापुर में और पूरे विश्व में इस्कॉन की सेंटर है, और ये वो इन्हें ही फॉलो करते हैं और अपना जीवन बना रहे हैं। आज कई यूथ हमारे इस्कॉन से जुड़े हैं और अलग अलग जगह में इस्कॉन का सेंटर है। आपको कहीं भी, इंडिया क्या, आपको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन का सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी प्रभुपाद जी ने 12 मंदिर तैयार किए और अभी वो बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, और इस्कॉन ऐसा कार्य ही कर रहा है और पूरे विश्व को बदल रहा है। तो ये हमें स्ट्रेस से बचाता है, पेशेंस दिलाता है, और बहुत सारे फ़ायदा है। आप इसको पढ़िए, ठीक है। पूरा विश्व पढ़ के भक्त बन रहा है, और वे मायापुर इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। उसे क्या टेस्ट मिल रहा है, इसमें टेस्ट है। और ये भगवत गीता आपको हर भाषा में मिलेगी, चाहे वर्ल्ड की किसी भी भाषा हो। उर्दू में भी है और पारसी में भी है, आपको कोई भी भाषा में, हिंदी, बंगाली, कोई भी भाषा में, और पूरे वर्ल्ड के भाषा में है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और सारा विश्व के लोग पढ़ रहे हैं और इंडिया की ओर गमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे टेस्ट मिल रहा है, वो सब कुछ जान रहे हैं, वैदिक संस्कृति हमारा जान रहे हैं। तो ये भगवत गीता सबसे बेस्ट है यूथ के लिए। और हमारा इस्कॉन सेंटर जो पूरे विश्व में है प्रभुपाद की कृपा से, तो उससे यूथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में कई लेक्चर आते हैं, आप उसे मतलब अटेंड कर सकते हैं। और मायापुर दर्शन आरती, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, सुबह 4 बजे लाइव आता है मायापुर दर्शन आरती में, आप दर्शन कर सकते हैं राधा माधव, पंचतत्व और नरसिंह देव का, और आरती भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम घर में क्या, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हुए, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं और भगवत भजन कर सकते हैं घर में ही। ओके। আমাদের জেনারেশনে তিলক কাটতে এবং ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরতে জেনারেশনের ছেলেরা ভীষণ লজ্জা পায়, ভাবে যে আমি হয়তো লজ্জিত হব, সবাই হয়তো আমাকে নিয়ে মজাক করবে, এই টাইপের মেন্টালিটিটা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি প্রভুজির কাছে জেনে নিব যে প্রভুজির কি মতামত তিলক কাটা আর ধুতি পাঞ্জাবি পরাটা নিয়ে, ওনার কি মতামত, এই ভয়টাকে তারা কি করে কাটিয়ে উঠবে। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यंग जनरेशन को कि आप देख सकते हैं बाहर में, आप बाहर भौतिकवादी लोगों को देख सकते हैं, जो आजकल यूथ वगैरह जो भक्ति से नहीं जुड़े हैं, वे क्या करते हैं, वे बहुत सारे पाप कर्म करते हैं और लज्जा महसूस नहीं करते हैं, किंतु धर्म के काम में आपको लज्जा महसूस आता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि समाज ही ऐसा, और आजकल समाज ही ऐसा हो गया है, कंट्रोवर्सी, कि आप शर्ट खोलकर बाहर निकल सकते हैं, आप छोटे छोटे कपड़े पहन सकते हैं,
आप तो उस समय आपको शर्म नहीं आएगा, आप सिगरेट फूंक सकते हैं रास्ते में, उस समय आपको शर्म नहीं आता। किंतु आप धोती कुर्ता, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो कि विदेशी लोग आप जानते हैं कि उसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो तो इंडिया से ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और भी गलत पाप कर्म में लिप्त है। और आज देखिए उसका जीवन बदल गया, किस लिए? प्रभुपाद की वजह से और भगवत गीता के वजह से। आप देखिए आज वो डांस करते हैं, आज वो संकीर्तन करते हैं, आज वे मायापुर में, आप जो विश्व की केंद्र है मायापुर, इस्कॉन सेंटर है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर कितने सारे रशियन भक्त, फ्रांसीसी भक्त और अमेरिकन भक्त और भी कई ना जाने भक्त आते हैं और धोती कुर्ता भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और गर्व महसूस करते हैं। फिर हम क्यों लज्जा पाए? हम क्यों समाज के ये से डर से हम छोड़ दें? और समाज में ही ये था, हमारे दादा परदादा, आप पता लगा सकते हैं, अगर आपकी कोई दादा या दादी, वो खुद बताएगी कि हम लोग कैसे रहते थे, जीवन यापन कैसा था पहले का। और अभी आप देख सकते हैं भारतीय लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति अपना रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर वाली बात है और इससे हमारा धर्म भी नष्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा विश्व का केंद्र मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर TOVP वैदिक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है। और आप देख सकते हैं वहाँ पर गुरुकुल भी है, जो कि विदेशी भक्त वहाँ पर अपने से भगवान के लिए कुक करते हैं। उसके बाद फिर मतलब वैदिक लाइफ स्टाइल जैसा कि गुरुकुल में बताया जाता है, धोती कुर्ता पहनते हैं और एकदम साधारण जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को देखिए, आपको शर्म नहीं आ रहा है, वो लोग को शर्म नहीं आ रहा है, फिर हम क्यों घबराए? अपनी संस्कृति है ये, हमें तो और भी गर्व महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो और तिलक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण है और जो आप नीचे देख रहे हैं वो तुलसी है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में हम तुलसी अर्पण करते हैं, क्योंकि तुलसी भक्ति देवी है, वो भक्ति दायिनी है, उसे हम अर्पण करते हैं और भगवान को खुश करने के लिए हम तुलसी तिलक काटते हैं, ताकि हमें भगवान देखे और प्रसन्न हो जाए कि हमारे चरण को ये भक्त धारण किया है, तो ये सबसे बेस्ट है। और हमारे जो महाप्रभु है वो हमें बता कर गए हैं कि अगर आप पूरे तरह से शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, और यह शरीर जो मिला है हमें परमात्मा से मिला है और परमात्मा सभी के भीतर है, और जहाँ परमात्मा रहते हैं वो एक मंदिर के समान है, तो ये शरीर हमारा मंदिर के समान है, ठीक है। और अगर हम उसको शुद्ध नहीं रखते हैं तो ये तो गलत ही बात होगा। अगर देखा जाए तो महाप्रभु हमें कह गए हैं कि अगर कोई शरीर को पवित्र रखना चाहता है तो उसे तिलक जरूर करना चाहिए। अगर नहीं तिलक करते हैं तो वह शरीर एक लाश के बराबर है, ठीक है। আমরা জানতে পেরেছি যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে আমরা বহু জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তো আমরা প্রভুজির কাছে জেনে নেব যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মূল্য কত। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़ है, यथायथ, ठीक है। और इसका कोई मूल्य नहीं है, आप मूल्य दे ही नहीं सकते इनका, ठीक है, क्योंकि ये मूल्य से बढ़कर है, भगवान श्री कृष्ण का वाणी है, आप समझ रहे हैं, ट्रांसीडेंटल है ये मूल्य से बढ़कर है। और सिर्फ हम इसका प्रिंटिंग प्राइस ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान इसका मूल्य नहीं दे सकता, ये इतना कीमती है, ठीक है। तो हम प्रिंटिंग ही प्राइस लेते हैं बस, और कुछ। যথাযথ আমি ক্ষমা প্রার্থী এই বিষয়টি নিয়ে যে আমি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাকে আমি মূল্য, তার দামটা আমি জানতে চেয়েছি যে মূল্য কত। তো সেক্ষেত্রে এটা তো অবশ্যই মূল্যহীন, মানে এতটাই দামি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী এখানে লেখা রয়েছে। তো আমি প্রভুজির কাছে জেনে নিব যে এটার দক্ষিণা কত, এটা কেনার জন্য আমাকে কতটা দক্ষিণা দিতে হবে। बस कुछ नहीं, एटलीस्ट इसका सिर्फ प्रिंटिंग प्राइस ही हम लोग लेते हैं और कुछ नहीं। इसका लगभग पड़ जाएगा आपको 250 रुपये, और ये कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। और ये यथायथ गीता है, ठीक है,
ये बहुत सारी गीता है मार्केट में, पर ये सबसे बेस्ट है प्रभुपाद की गीता इस्कॉन যথাযথ। হরে কৃষ্ণ। আজ ইসকন মন্দিরে এসে আমরা প্রভুজির কাছ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলাম এবং তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রভুজি আমাদের তার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং উনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জানা উচিত, আমরা অনেক কিছুই জানি না, আমরা অনেক ভুল পথে যাই, ভুল কাজ করে ফেলি, সে সমস্ত আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে উনি আজ দাঁড়িয়েছেন। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভুজি আপনাকে। হরে কৃষ্ণা। প্রভুজির সঙ্গে আমরা সমস্ত কথা সমাপ্ত করলাম এই জায়গায় এসে এবং বাকি জিনিসগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, চলুন। প্রভুজি হরে কৃষ্ণা। महाप्रभु ने एक और संदेश दिया है युवा के लिए कि जिसका भारत में जन्म होता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही वो बच्चा से ही वो सीखते हैं कि साधु का कैसे सम्मान किया जाए, साधु क्या है और किसको रिस्पेक्ट दिया जाए। पर ये पाश्चात्य देश में नहीं है। आप वहाँ पर देखेंगे कि शिष्टाचार नहीं है। वहाँ तो 10-12 साल की उम्र में ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और घर छोड़ देते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सभ्य सिखाया जाता है कि किसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एक भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जो आपको सुजोग देता है भक्ति का, कि आपको शुरू से ही सुजोग मिलता है भक्ति में। तो हम लोग सुजोग मिल के भी हम लोग इतने दुर्भाग्य है कि हमारी युवा पीढ़ी पारमार्थिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग भाग्यशाली है जो पाश्चात्य देश में हैं और जो अपना जीवन बनाने के लिए भारत गमन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम लोगों का विशेष है जो हमारे युवा समाज है वो लोग मिलकर हम लोग इस्कॉन सेंटर में आकर क्लास कर सकते हैं और इस माध्यम से हम लोग प्रचार कर सकते हैं भगवान के नाम का, दिव्य नाम का, कि भगवान इस कलयुग में क्या कहे हैं। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका मतलब है कि कलयुग में और कोई जीवन सार्थक नहीं है। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो मात्र हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ये 3 बार क्यों कहा गया है? क्योंकि लोग एक बार में हल्का में लेते हैं। तो महाप्रभु इसको 3 बार कहें कि नहीं है मतलब और नहीं है, ये पूरा क्लियर कर चुके हैं। और महाप्रभु का यही मेन मुद्दा है कि सारे यूथ को जोड़ा जाए और प्रीचिंग करे जाए। अगर हम प्रीच करते हैं, युवा को सिखलाते हैं, प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, तो इससे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।